हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप कि आप सभी ने जो प्रीवियस टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू हैव टू कॉल मी एंड यू हैव टू मैसेज मी और मेल टू मी एज माय व्हाट्सएप नंबर इज़ नॉट एक्टिव ड्यू टू माय फोन इज़ डेड, so you have to contact me in other methods. And now we have to continue the same chapter, different topic, that is memory unit. We have already discussed the different parts of computer architecture, that is input device, output device, and CPU. In the CPU or in the CPU box there will be a unit called memory unit. So how much memory is required for the field डेटा प्रोग्राम इज़ मेजर्ड बाय मेमोरी यूनिट्स। तो उसको हम क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं कि हाउ मच डेटा वी हैव टू रिक्वायर टू प्रोसेस डेटा, टू स्टोर ए डेटा और टू एग्जीक्यूट ए डेटा। फॉलोइंग आर द यूनिट you have everybody know this is a basic fundamental knowledge of computer, that is bit. The smallest is called bit. स्टोरेज इसको हम बाइनरी डिजिट में बोलते हैं, सिंगल 1 और 0. इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0. तो एवरीथिंग कंप्यूटर विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0. दैट इज़ निबल. बिट का जो हाफ पार्ट होता है, सॉरी बाइट, 4 बिट्स इज फॉर्म ए निबल. बट निबल इज़ नॉट ए measurement tools as or it is not able to store anything, but we also called nibble 4 bits. okay, इसकी कोई एब्रीवेशन नहीं है. बी हम बोलते हैं बाइट, और ऑक्टेट भी बोल सकते हैं, बट हम मोस्टली बाइट ही बोलते हैं. तो 8 बिट्स फॉर्म है 1 बाइट, एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर ए वैल्यू. 1 बाइट स्टोर ए वैल्यू. okay, if we have to form a number we have to store a byte. If we want to store 1 then we have to store into a byte, not a bit. okay. Then other kilobytes are the 1025 bytes, and then continues 1024 kb is equal to megabyte form gigabyte, and gigabyte form terabyte, and terabyte form petabyte form zettabyte, exabyte, and exabyte form zettabyte, and zettabyte form yottabyte. So till now the yottabyte is have been used in different architectures, not in general use. We have only terabytes in use. TB are used in general. Other than these are the these storage type are used in different special systems, that is forecasting system, satellite system, or bigger organization like Google, Microsoft are use are yottabytes and zettabytes also. These are the units of memory which you have to use to in storing the program or executing the program. And what are the memories? Memories are two types: the temporary memory and secondary memory. So the temporary memories are the RAM and ROM. RAM means random access memory and ROM is read-only memory. The memory in which each location can be accessed and changed. तो यहाँ पर RAM की जो फीचर्स है, that is feature only और RAM की each location and change can be accessed the each location and will be changed. It means we have to able to change the values of RAM depend upon the execution of the program. But other side read-only memory in which each location can be accessed but not changed. RAM is volatile and ROM is not. volatile का मतलब होता है कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है, बट ROM इज़ नॉट. These are the two memories which are used to execution of the program, not the storing of the program. RAM is, क्योंकि आपको पता है हर सिस्टम में रैम होती है, फ़ोन में रैम होती है. जितनी ज़्यादा रैम होती है प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, बिकॉज जब कोई भी डेटा एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले इट विल बी कम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, देन इट विल बी एग्जीक्यूट. all the instructions, all the resources, all the programs, all the coding are first reside into RAM, and then it will be processed. Otherwise, if without RAM you cannot process any
activity in the computer system or mobile system. Read-only memory, it is store the some predefined programs. Like आपका कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो इसमें CMOS आते हैं. CMOS मतलब कि जो भी प्रोग्राम के अंदर चेकिंग होती है कि ऑल द हार्डवेयर आर ओके, ऑल द, तो दीज आर द कोड आर रिटन इन फिक्स. आपको जो मोबाइल में एंड्रॉयड आता है, एंड्रॉयड इज जो रोम में स्टोर होता है, एंड्रॉयड स्टोर इन रोम, इट विल बी फिक्स. वो फिक्स है क्योंकि उसको आप जो भी इसकी प्रोसेसिंग है वो फिक्स कर सकते हैं. बाकी उसका इंटरफेस यू हैव टू चेंज, बट आप उसका हार्डवेयर चेंज नहीं कर सकते. दैट इज़ इन बिल्ड रोम. तो हम उसको एक्सेस तो कर सकते हैं बट वी हैव नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ रोम. Other side, secondary storage are used for the permanent storage. Means in future use, if you want to use some information in future, then you have to store the values in secondary storage. So that is, first is magnetic tape. They are first one we have to use. जब आपके पास, अगर आपने कभी देखा होगा टेप रिकॉर्डर टाइप होता था या मूवीज़ होती थी कैसेट्स वाली, तो वो मैग्नेटिक टेप का ही एक फॉर्म थी जो ऑडियो वीडियो के लिए थी, बट वैसे ही एक फॉर्म होती थी जो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते. दैट इज़, तो मास ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया डिवाइस था. और इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर हम एक हेड के थ्रू वी कैन राइट और रीड और राइट द डेटा, और वी कैन ऑल्सो इरेज द डेटा. देन हार्ड डिस्क जो हम आज तक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ दिस इज़ द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क ड्राइव फिक्स हेड होती हैं, रिमूवेबल हेड ड्राइव आती हैं, तो दो तरह की. और नाउ SSD भी आती है. तो हार्ड डिस्क इज सेट ऑफ स्टैक्ड डिस्क. ये बहुत सारी डिस्क होती हैं ऐसी, आपकी देखिए लेयर्स होती हैं. ईच डिस्क हैज़ डेटा स्टोरेज, डेटा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली. यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी होती है, और जो लेज़र होता है इसके ऊपर जो हेड होता है, देयर विल बी एक लेज़र पॉइंट विच विल बी राइट और रीड द डेटा इन कंस्ट्रक्ट सर्कल्स. और ट्रैक, वहाँ पर कुछ ये ट्रैक्स बने होते हैं, इन ट्रैक के ऊपर डेटा आपका स्टोर होता है. दैट इज़ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क आपकी काफ़ी होती है, पाटा होती है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल अटैचमेंट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, सॉलिड स्टेट ड्राइव. तो यहाँ पर दिस इज़ द लेटेस्ट वन जो हम यूज़ करते हैं आजकल कंप्यूटर में. SSD आ रही है. SSD इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर कोई मूवमेंट पार्ट नहीं होता. तो जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़, ये मूवमेंट पार्ट होते हैं, ये आपके मूवमेंट पार्ट है. तो ये ऊपर की दो वाल, इसमें आपका मूवमेंट पार्ट होता है, ये स्मॉल स्केल के लिए होती है. एंड देन सॉलिड स्टेट का मतलब होता है जैसे आपकी रैम चिप होती है, आपके मोबाइल में जो मेमोरी होती है वो HD मेमोरी होती है, मीन जो 128 GB या 64 GB होती है, दैट इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं. और मार्केट में अप टू 12 TB साइज़ तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है. 12 हो जाएंगी अभी थोड़े दिनों में, और जाएंगी 20-20 तक आ जाएंगी. इससे ज़्यादा नहीं होती है मार्केट में फॉर जनरल यूजेस. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क. देन इनपुट डिवाइस सभी को पता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जिससे हम स्कैन करते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. डॉक्यूमेंट सेंड देम टू द कंप्यूटर, मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर. OCR जो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, दिस इनपुट डिवाइस विच रीड प्रिंटेड टेक्स्ट एंड सेंड द कंप्यूटर. जो आपकी OMR मार्कशीट, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं कोई कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें आप मार्किंग करते हैं, तो वो सब ये रीड होता है. OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कुछ आपके स्पेशल सिम्बल्स बने होते हैं, तो दीज आर द रीडर. MIS, आपने चेक देखे हो, बैंक के चेक्स होते हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, तो दैट इज़ द मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर होते हैं. माइक्रोफोन भी आपका एक इनबिल्ट है, जो आप ऑडियो आप रिकॉर्ड करते हैं, तो दैट इज़ रिकॉर्ड योर वॉइस एंड स्टोर इन द कंप्यूटर. वेबकैम इज ऑल्सो कैप्चर द इमेज एंड स्टोर इन टू द कंप्यूटर. ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं जहाँ पर आप कुछ ड्राइंग्स बना के और कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं. यू हैव टू स्टोर द. ट्रैक बॉल्स होती हैं जैसे माउस की तरह, एक कि आप कर्सर को कंट्रोल करने के लिए. बार कोड रीडर, अगर आप शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे तो आप शॉपिंग करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बार कोड रीडर. गेम पैड, जो आपके बहुत सारे वीडियो गेम पैड आपके पास आते हैं, जैसे कई तरह के. आप अगर किसी गेम पार्लर में जाते हैं तो यू हैव टू सीधा, आपके पास अगर ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास एक ड्राइविंग का मिलेगा. ऐसे ही आपके पास जॉयस्टिक होती हैं जो डिफरेंट गेम को खेलने के लिए काम आते हैं. आपके घर में जो गेम खेलते हैं आप, दैट इज़ जॉयस्टिक. ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस. यू हैव टू रीड देम आउट एंड अंडरस्टैंड देम सीरियसली एंड
accurately. So for today, these topics we have only discussed. You have to prepare notes, all of them, and prepare some questions and write them. Write the answer of that questions. This is your homework, and you have to prepare notes only point wise, not the whole paragraph or whole text write in your PDF file. You have to just prepare notes in your own language. This is used when you have to give the exam. You have to prepare your answer based on the points. आप पॉइंट्स के ऊपर वो अपने आंसर को बना सकते हैं. 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.